going to start our new chapter, and that is first order ordinary differential equation. Okay, we already learned about the higher order ordinary differential equation. हमने higher order पढ़ लिया है. Now we are going to learn first order ordinary differential equation. Higher order की method और ये method वो all are separate, right? तो ऐसा कुछ नहीं है कि हायर मेथड की कोई मेथड आएगी तो ही ये आप सॉल्व कर पाओगे, या ये मेथड आपको आएगी तो ही आप हायर ऑर्डर. बोथ आर डिफरेंट. लेट्स स्टार्ट अवर टुडेस सेशन, दैट इज okay, no issue. Okay, no issue with the issue. Students, what is differential equation? A differential equation is an equation. Little louder. Okay. A differential equation is an equation which involves variables. Which type of variable? Dependent and independent, and their derivatives. Means differential equation किसको बोलते हैं? वो वाला equation जिसमें डिपेंडेंट एंड इंडिपेंडेंट वेरिएबल हो एंड उसके डेरिवेटिव्स भी हो. दैट इक्वेशन इज नोन एज डिफरेंशियल इक्वेशन, राइट? सो हियर फर्स्ट d square y upon dx square minus 5 dy by dx plus 6y is equal to e raised to x. तो यहाँ पे इक्वेशन 1 में स्टूडेंट्स y is your dependent variable, y equal to dependent variable, x is independent variable, and d by dx is your differential operator. D by dx, or in third equation, that is del by del x, del by del y. These all are your differential. मैं इसलिए आपको बता रही हूँ कि वाइवा में आपको पूछ सकते हैं. मैं समझाती हूँ ये सब. See, in equation 1, d square y by dx square minus 5 dy by dx plus 6y is equal to e raised to x. In this equation 1, y is our dependent variable, x is our independent variable. In second equation, again, d square y upon dx square whole square minus dy by dx whole square plus 1. In this case, again, y is dependent variable and x is independent variable. And in third equation, del square z upon del x square plus del square z upon del y square equal to x plus y, right? So here, this z is dependent and x and y is independent. Listen carefully, students. In equation third, अगर मैं इस तरह का इक्वेशन आपको लिख के दे दूं वाइवा में और पूछूं कि ये वाले इक्वेशन में डिपेंडेंट वेरिएबल कौन है, तो योर डिपेंडेंट वेरिएबल इज z एंड इंडिपेंडेंट वेरिएबल आर x एंड y. अब पता कैसे चलेगा कौन सा डिपेंडेंट है कौन सा इंडिपेंडेंट है? तो जो वेरिएबल न्यूमरेटर में हो दैट इज योर डिपेंडेंट वेरिएबल, एंड वेरिएबल विच अकर इन द डिनोमिनेटर, जो डिनोमिनेटर में वेरिएबल है वो आपका हो जाएगा इंडिपेंडेंट वेरिएबल. गॉट इट? अगर मैं आपको ऐसे लिख के दे दूं d square x upon dy square, तो यहाँ पे x इज डिपेंडेंट एंड y इज इंडिपेंडेंट. ओके, हमको ऐसा रटना नहीं है कि y डिपेंडेंट एंड x इंडिपेंडेंट. देखना है कि न्यूमरेटर में कौन सा वेरिएबल है. विच वेरिएबल इज इन न्यूमरेटर, दैट इज योर डिपेंडेंट वेरिएबल. विच वेरिएबल इज इन द डिनोमिनेटर, दैट इज योर इंडिपेंडेंट वेरिएबल. फर्स्ट थिंग. नाउ second, equation 1 and 2 involves ordinary derivative, hence it is ordinary differential equation. And equation 3 involves partial derivative, hence it is partial differential equation. अब कोई बच्चा ऐसा बोलता है कि जैसे यहाँ पे d यूज हुआ है, d by dx, that is differential ordinary differential equation, और यहाँ पे del यूज हुआ है, that's why it is partial differential equation. But that is not right answer, that is not proper answer. ये इक्वेशन 1 एंड 2 ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन है बिकॉज देयर इज ओनली वन इंडिपेंडेंट वेरिएबल. लिसन केयरफुली स्टूडेंट्स. in which equation there is only one independent variable. That equation is known as ordinary differential equation.
And in which equation there is more than one independent variable, two or more than two or more than two independent variable, that is your partial differential equation. ये तो समझ में आ रहा है ना कि ये सब डिफरेंशियल इक्वेशन है. सपोज इफ आई राइट 3y + 2x इज इक्वल टू 4, तो दिस इज जस्ट एल्जेब्रिक इक्वेशन. अगर मैं ऐसे लिख दूं 3e⁻² + 2 log x, तो ये हो गया मेरा ओनली एल्जेब्रिक इक्वेशन. ये जो हमने ऑलरेडी पढ़ा है ये एल्जेब्रिक इक्वेशन है. पर अगर मैं इसमें डिफरेंशियल ऑपरेटर डाल दूं, जैसे कि 3e⁻x dx + 2 log y dy something like that, और या फिर ऐसे लिखूं dy/dx, राइट. एट दैट टाइम दिस इक्वेशन मतलब डिफरेंशियल ऑपरेटर आ गया ना यहाँ पे d/dx, दैट्स व्हाई इट इज नोन एज अ डिफरेंशियल इक्वेशन. अब दिस ये वाले डिफरेंशियल इक्वेशन में अगर इंडिपेंडेंट वेरिएबल एक है तो वो ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन. इंडिपेंडेंट वेरिएबल मोर देन वन है, देन दैट इज partial differential equation. Got it, everyone? Okay, so let's move for the next. Here we have two different equation. One is d²y/dx² minus 5dy/dx plus 6y is equal to e⁻x, and other one is d²y/dx² whole square minus dy/dx whole square plus 1 equal to 0. अब इन दोनों का यूज करके हम दो डेफिनेशन पढ़ेंगे, ऑर्डर एंड डिग्री. आई नो यू ऑलरेडी, आप लोगों को ये स्कूल में आ गया है, पर अगर आप भूल गए हो तो प्लीज रिवाइज. और इस पे से ऑनलाइन वाइवा में क्वेश्चन आएगा ही आएगा. सो ऑर्डर, द ऑर्डर ऑफ अ डिफरेंशियल इक्वेशन इज द ऑर्डर ऑफ द हाईएस्ट डेरिवेटिव प्रेजेंट इन द इक्वेशन. ऑर्डर ऑफ द हाईएस्ट डेरिवेटिव. अब देखो यहाँ पे हाईएस्ट डेरिवेटिव क्या है स्टूडेंट्स? 2. सेकेंड वाले इक्वेशन में हाईएस्ट डेरिवेटिव इज 2, राइट. So order of equation 1 and 2 is 2. Saying the degree of the differential equation is power of the highest order derivative. Highest order derivative तो find out करना ही है, और उसका जो power रहेगा after clearing the radical sign and fraction, मतलब power में कोई radical sign या fraction नहीं होना चाहिए, right? Roll number 191, Hariom Yagnik, you are in the wrong division. Hariom, please leave this session. You are in the wrong division, Hariom. Parth Patel, please join through proper format. Please join through proper format. Parth Patel. Parth Patel, are you there? Please join through proper format. You joined with wrong format. This is last time. Okay. Okay. So the degree of equation 1 and degree of equation 2 is 2, right? Because the degree of the differential equation is the power of the highest order derivative, right? Okay, now tell me, if I write here dy/dx whole raised to 4 plus d³ y/dx cube whole raised to 2 plus 3y equal to 5. Now tell me, what is the degree and power order? What is the order and degree of this given differential equation? Yes. Yes. Okay. Some students have given answer in the chat box.
Most of the students have given answer right, but one or two students have done some mistakes. No issue. See students, यहाँ पे हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव कितनी है? व्हाट इज द हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव? अब ये जो है ना dy बाई डी एक्स, मतलब d बाई डी एक्स, दैट इज हाईएस्ट, मतलब दैट इज डेरिवेटिव. अब यहाँ पे d बाई डी एक्स मतलब यहाँ पे डेरिवेटिव हुई 1. ये है डी क्यूब बाई डी क्यूब अपॉन डी एक्स क्यूब, मतलब हाईएस्ट डेरिवेटिव 3 हुई स्टूडेंट्स. और जो हाईएस्ट डेरिवेटिव है ना वो हमारा ऑर्डर. सबसे पहले हमें ऑर्डर ही फाइंड आउट करना है. एक बार आप ऑर्डर फाइंड आउट कर लो, देन ऑर्डर का जो पावर होगा दैट इज योर डिग्री. गॉट इट? जब भी आपको ऑर्डर या डिग्री फाइंड आउट करने को पूछे, अगर आपको सिर्फ डिग्री ही पूछते हैं वाइवा में, देन ऑल्सो फर्स्ट यू हैव टू फाइंड द ऑर्डर, क्योंकि आपको हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव फाइंड आउट करना है, वो आपका ऑर्डर रहेगा. और हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव इज 3, मींस योर ऑर्डर इज 3 स्टूडेंट्स एंड डिग्री इज 2. नाउ गॉट इट? और इसका जो पावर, अब भले ही यहाँ पे 4 हो या 400 हो, पर हाईएस्ट ऑर्डर कौन सा है? 3 है, तो उसका जो पावर है वही डिग्री रहेगा. गॉट इट? ओके ओके. So most of the students have given right answer. One or two students have made mistakes. So please be careful. अब अगर मैं ऐसा लिखूं dy बाई डी एक्स होल स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर होल रेस टू 3/2 प्लस 2 dy by dx is equal to e raised to x. Only 2y is there. Suppose only 2y equal to 0. Now tell me what is the order and degree of the given differential equation? Okay, students have given answer in the chat box, but some answers are right, some are wrong. Students, यहाँ पे क्या है कि आपको रेडिकल साइन या फ्रैक्शन डिग्री फाइंड आउट करनी है. डिग्री फाइंड आउट करनी है मतलब आपको ये पावर फाइंड आउट करना है, राइट? बट कंडीशन इज व्हाट कि आफ्टर क्लियरिंग, ये देखो अच्छे से समझो, आफ्टर क्लियरिंग द रेडिकल साइन एंड फ्रैक्शन, मतलब अगर पावर में कोई फ्रैक्शन फॉर्म है ना तो आपको पहले उसको दूर करना है. समझ में आया? तो यहाँ पे पावर में फ्रैक्शन फॉर्म मतलब 3/2, तो 1/2 आया. तो 1/2 को हम दूर कैसे करेंगे? दोनों मतलब पूरे हम क्या ले लेंगे? स्क्वायर. इसके लिए जस्ट अ मिनट स्टूडेंट्स, मैं यहाँ पे इक्वल टू 0 ही लिख दूंगी जिससे थोड़ा इजी हो जाए. आंसर तो सेम ही रहेगा हमारा. जैसे मैं ये ले लूँ इक्वल टू 0. अब समझो, मुझे ये 1/2 दूर कर रहा है फ्रैक्शन फॉर्म. फ्रैक्शन फॉर्म दूर करने के लिए, 1/2 दूर करने के लिए हम क्या करेंगे? यस, हमको स्क्वायर करना पड़ेगा. तो यहाँ पे आ जाएगा dy बाई डी एक्स होल स्क्वायर का स्क्वायर, तो रेस टू 4. और यहाँ पे डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर रेस टू 3/2 और उसका स्क्वायर. उसका स्क्वायर मतलब स्टूडेंट्स ये वाला 2 कैंसिल हो जाएगा. नाउ योर ऑर्डर इज 2 एंड डिग्री इज 3. बहुत सारे स्टूडेंट्स ने ये वाला आंसर भी दिया हुआ है, ऑर्डर 2 एंड डिग्री 3, वो आंसर सही है. जिन्होंने मुझे डिग्री 3/2 लिख के दिया वो गलत है. गॉट इट? क्यों? समझ में आया ना कि अगर पावर में फ्रैक्शन फॉर्म में है तो वो फ्रैक्शन हमें रिमूव करना है, क्लियर करना है. ओके चलो, तो ये क्लियर हो गया. लेट्स मूव फॉर द नेक्स्ट टॉपिक. नाउ द फॉर्मेशन ऑफ अ डिफरेंशियल इक्वेशन. फॉर्मेशन मतलब हमें बनाना है. क्या बनाना है? डिफरेंशियल इक्वेशन. किससे बनाना है? देन यू हैव गिवन एल्जेब्रिक इक्वेशन. स्टूडेंट्स, एल्जेब्रिक इक्वेशन जैसे हमने अभी लिखा था, जैसे मैं ये लिख दूं 3 e raised to x प्लस 2 log x राइट इक्वल टू 0, जैसे या 3
y प्लस 2x इक्वल टू 5 समथिंग लाइक दिस। तो ये सब एल्जेब्रिक इक्वेशन हो गए। मैंने पहले ही बताया था इसमें डिफरेंशियल ऑपरेटर नहीं है। देयर इज नो डी बाई डी एक्स, नो डेल बाई डेल एक्स, नो डेल बाई डेल वाई, समथिंग लाइक दैट, राइट। देयर इज नो डिफरेंशियल इक्वेशन। तो इस तरह के इक्वेशन एल्जेब्रिक इक्वेशन होंगे। और इस एल्जेब्रिक इक्वेशन दिस वन इज गिवन और उसका यूज करके हमें डिफरेंशियल इक्वेशन जनरेट करना है। अब ये वर्किंग रूल है, इसको समझ लो। ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशंस आर, मतलब डिफरेंशियल इक्वेशन आर फॉर्म बाय एलिमिनेशन of arbitrary constant C1, C2 up to Cn from a relation like this, consider this one। मतलब एक इस तरह का एल्जेब्रिक इक्वेशन आपको गिवन होगा। अब ये वाले एल्जेब्रिक इक्वेशन में स्टूडेंट्स x एंड y आर वेरिएबल, x एंड y वेरिएबल है एंड दिस C1, C2 अप टू Cn n कांस्टेंट है। तो अगर आपके पास कोई ऐसा एल्जेब्रिक इक्वेशन है जिसके अंदर n डिफरेंट कांस्टेंट है, तो हमें सबसे पहले वो n कांस्टेंट को एलिमिनेट करना पड़ेगा। ओके, अब वो कैसे करेंगे? बाय डिफरेंशिएटिंग इक्वेशन 1 सक्सेसिवली विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। सक्सेसिवली का मीनिंग क्या हुआ स्टूडेंट्स? कि अगर मैं उसका इंडिपेंडेंट वेरिएबल एक्स है तो मैं फर्स्ट टाइम डेरिवेटिव करती हूँ और मुझे मिलता है डी वाई बाई डी एक्स, राइट। उसी डी वाई बाई डी एक्स का फिर से डेरिवेटिव लो डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स, उसी का डेरिवेटिव लो डी क्यूब वाई बाई डी एक्स, राइट। तो इस तरह से हमें एन टाइम्स में जनरल फॉर्म बता रही हूँ, एन टाइम डिफरेंशिएट करना है, उसी को हम सक्सेसिवली बोलते हैं, राइट। एंड एलिमिनेटिंग आर्बिट्ररी कांस्टेंट C1, C2 up to Cn from above n+1 इक्वेशन। अब n+1 इक्वेशन कहाँ से आए? तो एक इक्वेशन हमें गिवन था, n टाइम्स हमने डेरिवेटिव लिया, n टाइम डेरिवेटिव लिया तो n इक्वेशन मिलेंगे। पहला इक्वेशन डी वाई बाई डी एक्स, दूसरा डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर, तीसरा डी क्यूब वाई बाई डी एक्स क्यूब और लास्ट वन डी रेस टू एन वाई अपॉन डी एक्स रेस टू एन। तो ऐसे हमें n इक्वेशन मिले, एक गिवन इक्वेशन था, टोटल इक्वेशन हो गए हमारे n+1 और उस n+1 इक्वेशन का यूज करके हम वो जो कांस्टेंट है C1, C2 अप टू Cn उसको एलिमिनेट करेंगे और ये जो गिवन फॉर्म इक्वेशन 1 था ना वो कन्वर्ट होके ये वाला फॉर्म बन जाएगा एक्स वाई डी वाई बाई डी एक्स डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर इक्वल टू सी। मीन्स यहाँ पे देर इज नो एनी कांस्टेंट और कांस्टेंट की जगह पे क्या आ जाएगा? डिफरेंशियल ऑपरेटर। इन शॉर्ट, वेरी इजी, जो इक्वेशन आपको गिवन होगा स्टूडेंट्स उस इक्वेशन में जितने कांस्टेंट है उतनी टाइम हमें डिफरेंशिएशन लेना है और उस डिफरेंशिएशन से हमें जितने इक्वेशन मिलते हैं उस इक्वेशन का यूज करके हमें कांस्टेंट एलिमिनेट करना है और कांस्टेंट एलिमिनेट करने के बाद जो इक्वेशन मिलेगा वो हमारा आंसर। ये वर्किंग रूल है। फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग ऑफ वर्किंग रूल लेट्स स्टार्ट सम एग्जांपल। देखो ये पहला क्वेश्चन है, फॉर्म डिफरेंशियल इक्वेशन बाय एलिमिनेटिंग आर्बिट्ररी कांस्टेंट फ्रॉम दिस इक्वेशन। आपको बोला गया है फॉर्म डिफरेंशियल इक्वेशन, मतलब आपको डिफरेंशियल इक्वेशन फॉर्मेट करना है। गिवन इक्वेशन है आपका log y बाय एक्स इज इक्वल टू सी एक्स। अब इसको देख के ही आपको समझ में आना चाहिए कि यहाँ पे y इज योर डिपेंडेंट वेरिएबल, x इज इंडिपेंडेंट वेरिएबल और एक ही कांस्टेंट है स्टूडेंट एंड दैट इज c, राइट। अब ये वाले इक्वेशन में एक कांस्टेंट है तो हम इसके कितने डेरिवेटिव लेंगे? एक ही डेरिवेटिव लेंगे। तो लेट्स स्टार्ट, दिस इज अवर गिवन इक्वेशन, ये वाली सॉल्यूशन स्टार्ट कर रहे हैं। दिस इज अवर गिवन इक्वेशन, डिफरेंशिएटिंग इक्वेशन 1 विथ रिस्पेक्ट टू x, इसका विथ रिस्पेक्ट टू x डेरिवेटिव करो तो हमें मिलेगा 1 बाय y डी वाई बाई डी एक्स माइनस 1 अपॉन x इक्वल टू c। डिफरेंशिएशन लेने से हमें ये आंसर मिलता है। अब ये लिसन केयरफुली, फॉर एलिमिनेटिंग c इन इक्वेशन 1, मुझे यहाँ से c को एलिमिनेट करना है ना, तो मैं ये c की वैल्यू ये वाली इक्वेशन 1 में सब्स्टिट्यूट करूंगी तो क्या हो जाएगा? log y बाय एक्स इज इक्वल टू एक्स, c की वैल्यू हो गई 1 बाय y, ये वैल्यू, राइट। c की जगह पे हम ये सब्स्टिट्यूट करेंगे। सो आफ्टर सिंप्लीफिकेशन हमें मिलेगा x बाय y डी वाई बाई डी एक्स माइनस ये x x कट हो गया तो -1। अब देखो ये गिवन इक्वेशन था, ये
कांस्टेंट एलिमिनेट करने के बाद हमें जो मिला वो इक्वेशन है। अब इसके अंदर डिफरेंशियल ऑपरेटर है dy by dx, यस, तो ये डिफरेंशियल इक्वेशन बन गया, डिफरेंशियल ऑपरेटर है इसलिए। और देयर इज नो एनी कांस्टेंट, यहाँ एक ही कांस्टेंट था c, वो हमने एलिमिनेट कर दिया। सो विच इज डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ फर्स्ट ऑर्डर, या आप ऐसे भी लिख सकते हो विच इज रिक्वायर्ड ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन। समझ में आया स्टूडेंट्स? एक कांस्टेंट है, एक बार डेरिवेटिव करो, उस डेरिवेटिव से आपको जो भी कांस्टेंट मिला उसको सब्जेक्ट बना के उसकी वैल्यू वहां पे सब्स्टिट्यूट कर दो, बस सिंपल। ओके, लेट्स मूव फॉर वन मोर एग्जांपल, दैट इज फाइंड differential equation of the family of circles of radius r where center lies on the x-axis। अब हम क्या कर रहे हैं यहाँ पे, फैमिली ऑफ सर्कल, मतलब ये वर्ड फॉर्मेशन में आपका प्रॉब्लम गिवन है, और ये वर्ड फॉर्मेशन का जो प्रॉब्लम है उसको आपको मैथमेटिकल सिंबल में, मतलब मैथमेटिकल इक्वेशन में सबसे पहले लिखना है। देन आफ्टर वो लिखने के बाद आपको देखना है कि उसके अंदर कितने कांस्टेंट है, और जितने भी कांस्टेंट है उसमें से हम क्या करेंगे, उतनी बार डेरिवेटिव लेंगे और उस कांस्टेंट को आप एलिमिनेट करके डिफरेंशियल इक्वेशन जनरेट करेंगे। अब देखो, आपको पता है फैमिली ऑफ सर्कल, मतलब सर्कल की फॉर्मूला आएगी, रेडियस आर गिवन है एंड सेंटर लाइज ऑन द एक्स एक्सिस। लाइज ऑन द एक्स एक्सिस मतलब यहाँ पे इस तरह से लो आप, सेंटर ये पूरे एक्स एक्सिस पे कहीं भी हो सकता है, हम यहाँ ले रहे हैं रैंडमली A0 सेंटर, A0 with the center, R with the radius of the family of circle। A0 सेंटर और R रेडियस वाला कोई भी सर्कल ले लो, राइट। अब इक्वेशन क्या होगा स्टूडेंट्स, x माइनस ए होल स्क्वायर प्लस y माइनस बी होल स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर। जहां पे अगर हमारा सेंटर इन जनरल ए बी हो, तो अब हमारा सेंटर A0 है, 0 लेना कंपलसरी है क्योंकि यहाँ पे बोला है कि हमारा सेंटर लाइज ऑन एक्स एक्सिस। सेंटर लाइज ऑन एक्स एक्सिस मतलब उसका वाई-एम 0 ही होना चाहिए, जो भी पॉइंट एक्स एक्स पे होगा उसका वाई-एम 0 ही होगा, व्हाट इट। इसीलिए यहाँ पे हमने एक्स या एनी कांस्टेंट कुछ भी हो सकता है, इट मे बी 0, इट मे बी नॉन 0, एनी टर्म, इट मे बी पॉजिटिव, इट मे बी नेगेटिव, राइट, बट योर इट्स वाई-एम इट्स मस्ट बी 0। So let A0 be the center, R be the radius of the family of circle. The equation of the family of circle is like this. After simplification, this is our equation 1. अब देखो ये वाले इक्वेशन में एक कांस्टेंट है A, राइट। अब इसको एलिमिनेट करने के लिए हम इसका डिफरेंशिएशन लेंगे विथ रिस्पेक्ट टू x। अगर हमने इसका डिफरेंशिएशन लिया वो होगा 2x माइनस ए इंटू 1, इंटू 1 लिखने की जरूरत नहीं है, 2x minus a means 2x minus 2a plus 2y dy by dx. R is constant, so derivative of r square is 0. Now, for eliminating this x minus a, for eliminating this a, I am going to subject from this equation x minus a. यहाँ पे मुझे a को एलिमिनेट करना है, तो मैं अकेले a को नहीं एलिमिनेट कर सकती, मैं पूरे x माइनस a को इस इक्वेशन में सब्जेक्ट बना के एलिमिनेट करूंगी। दैट्स व्हाई इफ आई टेक 2 कॉमन फ्रॉम द इक्वेशन, बाकी क्या बचेगा, x माइनस a प्लस y dy by dx। इफ आई कीप this dy by dx right hand side, so value of x minus a is what, minus y dy by dx. So now I am going to substitute the value of this x minus a, this value in इक्वेशन 1। सो x माइनस ए की जगह पे आप ये रखो तो हो जाएगा माइनस वाई डी वाई बाई डी एक्स होल स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर। आफ्टर सिंप्लीफिकेशन दिस इज वाई स्क्वायर डी वाई बाई डी एक्स होल स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर। यहाँ से वाई स्क्वायर कॉमन ले लिया, ये हमारा डिफरेंशियल इक्वेशन, क्योंकि यहाँ पे है ना डिफरेंशियल ऑपरेटर एंड देयर इज नो कांस्टेंट, गॉट इट। कोई डाउट किसी को? Okay, yes, Dhaval, very good. So let's move for one more and last example, students. Then after, we'll move for the next topic.
ये वाला लास्ट क्वेश्चन है, फाइंड द डिफरेंशियल इक्वेशन बाय एलिमिनेटिंग आर्बिट्ररी कांस्टेंट फ्रॉम दिस। वाइवा में ऐसे पूछ सकते हैं, जैसे ऐसे इक्वेशन दे दिया, इस पे लिखा है फाइंड डिफरेंशियल इक्वेशन, मतलब यहाँ इस इक्वेशन का डिफरेंशियल इक्वेशन को कन्वर्ट करने के लिए हमें कितनी बार डेरिवेटिव लेना पड़ेगा या फिर क्या करना पड़ेगा। तो देर आर, ऐसा क्वेश्चन दे दे, पूरा सॉल्व तो करना नहीं है, इस पे से अगर आपको पूछ सकते हैं कि हम क्या करेंगे, तो आपको बोलना पड़ेगा कि यस देर आर टू कांस्टेंट ए एंड बी, as there are two constants, so we are going for 2 times successive derivative, right? हमको 2 बार successive derivative लेकर वहां से फिर a और b को रिमूव करना है। ऐसा भी पूछ सकते हैं कि 2 टाइम्स डेरिवेटिव तो ले लिया, एक इक्वेशन हमें मिलेगा dy by dx के फॉर्म में, दूसरा मिलेगा d square y by dx के फॉर्म में, देन आफ्टर व्हाट टू डू। यस, चलो देख लेते हैं ये वाला गिवन इक्वेशन, डिफरेंशिएटिंग इक्वेशन 1 ट्वाइस विथ रिस्पेक्ट टू x, सो ये dy by dx, दिस इज d square y by dx square। आई डोंट थिंक सो कि यहाँ पे कोई डाउट हो, क्योंकि ये डेरिवेटिव बहुत ही इजी है, a raised to minus 3x into -3, और यहाँ पे b raised to 2x into 2, सेकेंड टाइम डेरिवेटिव लो, -3 into -3 सो 9, और यहाँ पे 4। अब 3 इक्वेशन है हमारे पास, एक गिवन इक्वेशन, 2 हमने फाइंड आउट किए। अब यहाँ से एक को एलिमिनेट कैसे करें, तो यहाँ पे हम डिटर्मिनेंट ले लेंगे। डिटर्मिनेंट कैसे बनाएंगे, सो तीनों इक्वेशन में से ए का कोएफिशिएंट, बी का कोएफिशिएंट, और ये जो y dy by डी x एंड डी स्क्वायर y by dx का है, उसको राइट हैंड साइड पे ले लो, तो ये कैसे हो जाएगा, a e raised to minus 3x plus b e raised to 2x minus y equal to 0, राइट। सेम वे यहाँ पे माइनस डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू 0, और इसको भी यहाँ पे ले लो, तो ये माइनस डी स्क्वायर वाई बाई डी स्क्वायर, और लेफ्ट हैंड साइड पे 0। तो ऐसे जो 3 इक्वेशन है स्टूडेंट्स, यहाँ पे ए का कोएफिशिएंट, तीनों इक्वेशन में से ए का कोएफिशिएंट, तो यहाँ पे क्या है e raised to minus 3x, दूसरे में क्या है -3 e raised to minus 3x, और लास्ट वन 9 e raised to minus 3x। सेकेंड, b का कोएफिशिएंट e raised to 2x, फिर 2 e raised to 2x, और यहाँ पे 4 e raised to 2x, एंड लास्ट वन दिस इज माइनस y, दिस इज माइनस dy by dx एंड माइनस d square y by dx, राइट। अब इसको सॉल्व करने के लिए लिसन केयरफुली, वैसे तो डिटर्मिनेंट आप लोगों ने बहुत बार सॉल्व किया है, पर यहाँ पे क्या है, पूरे कॉलम 1 में e raised to minus 3x इज देयर, राइट, कॉलम 2 में e raised to 2x, और कॉलम 3 में -1 इज देयर। तो मैंने तीनों कॉलम में से कॉमन लेके ये वाला लिख दिया। अगर ये कोएफिशिएंट है तो मैं इसको राइट हैंड साइड पे लूँ, तो 0 अपन, तो वो 0, मतलब ये कोएफिशिएंट मैं निकाल सकती हूँ, राइट। तो इतना बचा। अब इसको सॉल्व करने के लिए 1 2 इंटू डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर माइनस 4 इंटू डी वाई बाई डी एक्स, ये वाली मतलब माइनस साइन, -1 -3 इंटू डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर -9 इंटू डी वाई बाई डी एक्स, देन प्लस वाई -12 -18। आफ्टर सिंप्लीफिकेशन हमें ये वाला इक्वेशन मिलेगा, और आप देख लो उसके अंदर डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर मतलब डिफरेंशियल ऑपरेटर भी है, एंड देयर इज नो एनी कांस्टेंट, राइट। So this is the differential equation with ऑर्डर 2 एंड डिग्री 1। आप लिख सकते हो, आप ऐसा अगर पूछा हो तो लिखो, अगर आपको नहीं याद आता और आप सिर्फ इतना लिख दो विच इज रिक्वायर्ड डिफरेंशियल इक्वेशन, तो भी चलता है, राइट। पर यस, आई एम डैम श्योर कि आपको ये वाले मतलब ऑर्डर, डिग्री एंड फॉर्मेशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन, वाइवा में इस वाले टॉपिक में से नॉर्मल इक्वेशन आएंगे ही आएंगे। गॉट इट? किसी को कोई डाउट है? If you have any doubt, you may ask. Otherwise, we may go for the next topic. अगर दिव्या, अगर हम e to 2x से डिवाइड भी करें, then what? राइट? समझ में आ गया ना दिव्या? इसको डिवाइड करने से भी ओके। Raise your hand, Divya. So I'm going to unmute. Okay. I'm going to unmute you. Yes, Divya, बोलो. You are unmute now.
You are unmute now. What happened? Yes, Divya, you are unmute. Hello, ma'am. Can you hear me? Huh? Ma'am, if we divide by e raised to 2x and differentiate the first time, then we will have b gone. हाँ, ओके, यस यस, हो सकता है, या फिर टू ई रेस टू माइनस थ्री एक्स से डिवाइड करके भी। ओके चल सुन, तो मतलब फिर तू क्या करेगा, ए को सब्जेक्ट बना के ए की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेगा और बी को सब्जेक्ट बना के बी की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेगा, राइट? पर e raised to पर z सुन सुन सुन, लिसन लिसन कैरफुली, सी दिस इज द रूल दिव्य, कि एक तो जितने उसके अंदर कांस्टेंट है ना, उतनी टाइम डेरिवेटिव तो लेना ही है। तो अगर तू यहाँ पे इसी इक्वेशन से ए और बी को सब्जेक्ट बना के सब्स्टिट्यूट करता है, देन दैट इज नॉट प्रॉपर मेथड, दैट इज नॉट प्रॉपर आंसर ऑल्सो। समझ में आया? दो बार डेरिवेटिव होगा ना मैम? हाँ, तो चल तूने ये 2 बार डेरिवेटिव किया, तो 2 बार डेरिवेटिव करने के बाद तू यहाँ से कर सकता है, पर यहाँ से नहीं, राइट? e raised to 2x से डिवाइड करेंगे, उसके बाद एक बार डेरिवेटिव लेंगे तो b चला गया। अरे वो तो मैं समझ गई, सब्जेक्ट बनाना मतलब वही हुआ, 2x से डिवाइड करो। उसके बाद e raised to -3x से डिवाइड करेंगे इक्वेशन को, उसके बाद फिर से डेरिवेटिव लेंगे तो ये भी चला जाएगा। मैं वही बोल रही हूँ दिव्या, तो इक्वेशन 2 से इस वाले इक्वेशन से कर सकता है, ये वाले इक्वेशन से वो नहीं कर सकता, दैट आई एम गोइंग टू टेल यू। समझ में आ रहा है क्यों? क्योंकि ये इक्वेशन यूज करके जो तू आंसर फाइंड आउट करेगा वो प्रॉपर आंसर इसलिए नहीं रहेगा क्योंकि यहाँ पे 2 कांस्टेंट है। सी वर्किंग रूल इज देयर, हमें वर्किंग रूल फॉलो करने हैं, कि जैसे ये वाला, कि जैसे फॉर्मेशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन, डिफरेंशियल इक्वेशन का फॉर्मेशन के लिए वर्किंग रूल क्या है, कि यहाँ पे जितने कांस्टेंट है उतनी बार तो हमें डेरिवेटिव लेना ही है और फिर कांस्टेंट को एलिमिनेट करना है। गॉट इट? तो यहाँ पे 2 बार कांस्टेंट है, तो आपको 2 बार तो डिफरेंशियल इक्वेशन लेना ही है, एंड आफ्टर गेटिंग 2 टाइम्स डेरिवेटिव, बाद में जो आपको इक्वेशन मिलता है उस पे से आप कर सकते हो। यस, उस पे से आप एलिमिनेट करके, जैसे तूने बोला e रेज़ टू 2x से डिवाइड कर दो, e रेज़ टू -3x से डिवाइड करो, तो वही हुआ। मैं ये वर्ड यूज कर रही हूँ, बी को सब्जेक्ट बनाओ, तू वर्ड यूज कर रहा है e रेज़ टू 2x से डिवाइड करो। जरूरी नहीं है कि आप ये वाली मेथड ही अप्लाई करो। गॉट इट? समझ में आ रहा है ना? ओके चलो, हाँ। पर मैं सिर्फ इतना बताना चाहती थी कि यहाँ से तू डिवाइड करके आंसर नहीं फाइंड आउट कर सकता, बस दैट्स इट। गॉट इट? ओके, सो एवरीवन, किसी को कोई डाउट है? इफ यू हैव एनी डाउट यू मे रेज योर हैंड, अदरवाइज विल मूव फॉर द नेक्स्ट टॉपिक। दिव्या, तुम्हारा हैंड रेज है, कोई डाउट है? फिर से मैं अनम्यूट करूं? एनीवन? Okay, so no doubt is there, so we'll move for the next topic, student. अब अभी जो हमने टॉपिक पढ़ा उसमें क्या था? एल्जेब्रिक इक्वेशन गिवन था, डिफरेंशियल इक्वेशन का फॉर्मेशन हमें बनाना था। नाउ ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ फर्स्ट ऑर्डर एंड डिग्री हमें गिवन होगा और हमें उसका सॉल्यूशन फाइंड आउट करना है। अभी हायर ऑर्डर ऑलरेडी हमने पढ़ लिया है, पर स्टूडेंट्स वो हायर ऑर्डर की मेथड और फर्स्ट ऑर्डर की मेथड, देयर इज नो एनी कनेक्शन, ऑल आर डिफरेंट, राइट? तो अभी आज हम स्टार्ट करेंगे सॉल्यूशन ऑफ द ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन। सबसे पहले ऑफ फर्स्ट ऑर्डर एंड फर्स्ट डिग्री, सो डिफरेंशियल इक्वेशन व्हिच कंटेन फर्स्ट ऑर्डर एंड फर्स्ट डिग्री derivative of y is dependent variable and a known function of x that is independent variable, then y is known as ordinary differential equation of first order and first degree. Here these are the method, मतलब ये अलग अलग फॉर्मेट है, इस फॉर्मेट से आप फर्स्ट ऑर्डर और फर्स्ट डिग्री डिफाइन कर सकते हो, लिख सकते हो। Got it? So let's move for the different method for the solution of the first order first degree ordinary differential equation, right? First, there are total 5 methods, students. First is variable separable, other is exact differential equation, third is non-exact differential equation which is reducible to exact form,
fourth is linear differential equation, and fifth is non-linear differential equation which is reducible to linear form. Today we are going to learn first method, variable separable method. This is the basic method, easy method, but ये method बाकी सब method में कहीं ना कहीं applicable होगी, right? So a working rule of the variable separable method. Here a differential equation of the form m dx plus n dy equal to 0. ये वाला वर्किंग रूल है, मतलब ये फर्स्ट इस तरह का डिफरेंशियल इक्वेशन आपके पास होना चाहिए. अगर नहीं है तो आपको इस फॉर्मेट में कन्वर्ट करना है. व्हाट इज इस फॉर्मेट में मतलब व्हाट? तो dx के साथ फंक्शन ऑफ x ओनली एंड dy के साथ फंक्शन ऑफ y ओनली, where m of x is the function of x and n of y is the function of y only, right? अब it is called the differential equation with variable separable. Now जैसे ही dx के साथ only function of x and dy के साथ only function of y आ जाता है, you have to go for the integration और the solution. मतलब आप सिर्फ दोनों साइड पे इंटीग्रेशन ले लो और जो भी आएगा वो आपका फाइनल आंसर रहेगा. So let's start the example. Here our first equation is what? 3e raised to x tan y dy plus 1 plus e raised to x square y dy equal to 0. Okay, ये आपका गिवन क्वेश्चन है. सी ये वाला dx है, दोनों y नहीं हो सकता. There is मिस्टेक यहाँ लिखा ना dx, so this is dx. ये सॉल्यूशन. This is our given question. सबसे पहले स्टूडेंट्स, जब भी आपको फर्स्ट ऑर्डर ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन सॉल्व करना हो, आप इक्वेशन देखो और आपको लगे कि हाँ मैं उसमें x और y की टर्म सेपरेट कर, मतलब इट इज पॉसिबल टू सेपरेट बोथ द टर्म, फंक्शन ऑफ x एंड फंक्शन ऑफ y, देन सबसे पहले आपको 3e raised to x tan y dx और दूसरी जो भी टर्म हो ना उसको यू हैव टू राइट ऑन द राइट हैंड साइड. अगर वो पॉजिटिव है तो नेगेटिव कर दो, नेगेटिव है तो पॉजिटिव कर दो, पर दोनों टर्म अलग कर दो, राइट? तो ये हो गया, दोनों टर्म डिफरेंट हो गई. अब देखो dx के साथ मुझे फंक्शन ऑफ x चाहिए, ओनली फंक्शन ऑफ x, तो मैं ये tan y को उठा के राइट हैंड साइड पे ले लूंगी और यहाँ से 1 प्लस x को उठा के लेफ्ट हैंड साइड. सो क्या हो जाएगा 3 e raised to x और ये जो 1 प्लस e raised to x है वो डिनोमिनेटर में आएगा, राइट हैंड साइड पे माइनस एक्स स्क्वायर वाई tan y डिनोमिनेटर में, राइट? तो इंटीग्रेटिंग यहाँ पे फंक्शन ऑफ x इंटू डी एक्स एंड फंक्शन ऑफ y इंटू डी वाई हो गया. तो फंक्शन ऑफ x के साथ dx आ जाता है, फंक्शन ऑफ y के साथ dy आ जाता है. तो यू हैव टू जस्ट इंटीग्रेट बोथ साइड, आपको दोनों साइड पे सेम इंटीग्रेशन लेना है. यहाँ पे दोनों साइड पे मैंने इंटीग्रेशन का सिंबल लिख दिया. अब देखो इफ आई पुट दिस 3 आउट ऑफ द इंटीग्रल, डिनोमिनेटर क्या है हमारा 1 प्लस e raised to x और डिनोमिनेटर का डेरिवेटिव न्यूमरेटर में है. यस, डेरिवेटिव ऑफ डिनोमिनेटर इज व्हाट? e raised to x और डिनोमिनेटर का डेरिवेटिव न्यूमरेटर में है. इसका इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा? log ऑफ डिनोमिनेटर, सो log ऑफ 1 प्लस e raised to x. द सेम रूल विल एप्लीकेबल टू राइट हैंड साइड. tan y का डेरिवेटिव सेक्स स्क्वायर y, डिनोमिनेटर का डेरिवेटिव न्यूमरेटर में है, तो यहाँ पे हो जाएगा माइनस log tan y. यहाँ पे हमने कौन सा रूल अप्लाई किया है? ऊपर नीचे है f ऑफ x, ऊपर है f डैश x. डिनोमिनेटर का डेरिवेटिव न्यूमरेटर में है, एट दैट टाइम वी हैव टू राइट log ऑफ f ऑफ x, log ऑफ डिनोमिनेटर, राइट? दोनों में ये वाला रूल अप्लाई हुआ. अब यहाँ पे भी log है, यहाँ पे भी log है, तो कांस्टेंट हमने ले लिया log c. अप्लाइंग लॉगरिथम रूल, ये जो मल्टीपल है 3 उसको मैं यहाँ पावर में लिख दूँ और यहाँ पे log, ये पॉजिटिव ये नेगेटिव साइन, सो log c अपॉन tan y, राइट? इफ आई remove log from both side, 1 plus e raised to x whole equal to c upon tan y, so c is equal to, this is our final answer. स्टूडेंट्स, वेरिएबल सेपरेबल इज द इजीएस्ट मेथड. यहाँ पे सिर्फ आपको दोनों वेरिएबल को सेपरेट करना है और फिर दोनों पे दोनों साइड पे इंटीग्रेशन अप्लाई करना है. गॉट इट एवरीवन? वेरी इजी. मेन थिंग आपको देखकर पता लगना चाहिए कि यहाँ पे वेरिएबल सेपरेबल इज एप्लीकेबल और नॉट. ओके, सो लेट्स मूव फॉर द नेक्स्ट क्वेश्चन. ये है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन. सॉल्व
dy by dx is equal to e raised to x minus y plus x square e raised to minus y. अब इसको देखकर आपको पता चलना चाहिए कि हाँ यहाँ पे x और y वाले टर्म्स डिफरेंट हो सकती है, जैसे कि dy by dx is equal to e raised to x into e raised to minus y plus x square e raised to minus y. अब दोनों में से अगर मैं e raised to minus y कॉमन ले लूं, then there is e raised to x plus x square और यहाँ पे है dy by dx. मुझे dy के साथ फंक्शन ऑफ y चाहिए, so I am taking this e raised to y from right hand side and will put on the left hand side and taking dx from the left hand side and will put on the right hand side. तो ऐसा हो जाएगा, e raised to minus y लेफ्ट हैंड साइड लेंगे तो वो पॉजिटिव हो जाएगा, राइट? और ये जो dx डिनोमिनेटर है वो राइट हैंड साइड पे लेंगे तो न्यूमरेटर। गॉट इट एवरीवन? dy के साथ फंक्शन ऑफ y, dx के साथ फंक्शन ऑफ x, दोनों सेपरेट हो गया। जैसे ही दोनों वेरिएबल सेपरेट होते हैं, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड और बाय टेकिंग इंटीग्रेशन बोथ साइड, इंटीग्रेशन इज टू y dy, यहाँ पे इंटीग्रेशन इज टू x प्लस x स्क्वायर dx, इज टू y का इंटीग्रेशन विथ रिस्पेक्ट टू y, सो इज टू y, यहाँ पे with respect to x लेना है, so इज टू x plus x cube by 3 and constant c. अब कोई बोलता है कि कांस्टेंट राइट हैंड साइड पे ही लिखना जरूरी है, नो, देयर इज नो एनी रूल। अगर आपको कांस्टेंट लेफ्ट हैंड साइड पे पुट करना है, आप लेफ्ट हैंड साइड पे पुट करो, राइट, अप टू यू, पर कांस्टेंट पुट करो, दैट इज इनपुट, वो पुट करना जरूरी है। गॉट इट? ओके, लेट्स मूव फॉर वन मोर एग्जांपल। सॉल्व 9y डैश प्लस 4x, तो ये हमारा सॉल्यूशन है। This is our given equation. Y dash means what, students? Y dash is dy by dx, right? So if I take this dx from left hand side and put on the right hand side, that is 9y dy equal to minus 4x dx. मतलब dy के साथ फंक्शन ऑफ y एंड dx के साथ फंक्शन ऑफ x हो गए दोनों सेपरेट, एक तरफ y है एक तरफ x है। So as both variable are separate now, so by integrating both sides, यहाँ का इंटीग्रेशन हो जाएगा y square by 2, यहाँ का x square by 2 and this is constant. And after simplification, this is 9y square, यहाँ पे this is minus 2x square. अब यहाँ से अगर मैं 2 LCM ले लूँ तो यहाँ फिर से हो जाएगा 4x square और यहाँ पे 2c होगा ना, बट 2c इज इक्वल टू c डैश, तो हम यहाँ पे इक्वल टू c डैश भी लिख सकते हैं एज यू विश। अगर किसी को c डैश नहीं लिखना है, सिर्फ ऐसे 2c रखना है तो भी चलेगा, या कोई ऐसा बोले कि नहीं मैं 9y स्क्वायर बाई 2, ये वाला मैंने लेफ्ट हैंड साइड पे लिया, तो यहाँ पे हो जाएगा मेरा माइनस 2x स्क्वायर और इज इक्वल टू c। ऐसा भी रखो तो चलता है, इसको गलत नहीं बोल सकते, बट जो आप ऐसा लगता है कि एक आध स्टेप कंप्लीट नहीं है, शायद बच्चे को नहीं पता, राइट? तो अगर हो सकता है तो जितना हो सके उतना सिंप्लीफिकेशन कर दो, नहीं भी करोगे तो कोई इश्यू नहीं है। अभी तो हमारे ऑनलाइन वाइवा है, ऑनलाइन वाइवा में इस वाले टॉपिक में से किस तरह के क्वेश्चन की पॉसिबिलिटी है। तो जैसे कि ये वाला क्वेश्चन दे दिया और आपसे पूछा जाए कि विच मेथड इज एप्लीकेबल फॉर सॉल्विंग दिस इक्वेशन, या स्टार्टिंग ऐसा करेंगे कि ये इज इट डिफरेंशियल इक्वेशन, सबसे पहले ये इक्वेशन बता के आपको पूछते हैं कि इज इट डिफरेंशियल इक्वेशन, तो आपको यहाँ पे y डैश आया ना, y डैश इज देयर, तो y डैश का मीनिंग ही है dy by dx। जैसे ही इक्वेशन में dy by dx आता है तो यस दैट इज डिफरेंशियल इक्वेशन। और डिफरेंशियल इक्वेशन है तो उसका ऑर्डर एंड डिग्री क्या है, तो वो आपको पता होना चाहिए। उसका ऑर्डर फर्स्ट ऑर्डर, डिग्री भी फर्स्ट है। ये इतना समझ में आ गया। अब आपको पूछेंगे कि ओके चलो ऑर्डर 1 डिग्री 1, यू आर राइट। अब इसको सॉल्व करना है तो कौन सी मेथड इस पे एप्लीकेबल है, देयर आर टोटल 5 मेथड। तो अगर कोई बच्चा मुझे पूछता है कि मुझे सॉल्यूशन आता है बट आई डोंट रिमेम्बर द नेम ऑफ द मेथड, तो नहीं, ऑनलाइन वाइवा है, यहाँ पे ऑफलाइन में डिस्क्रिप्टिव नहीं पर ऑनलाइन है, तो आपको नाम याद होना ही चाहिए। Got it? आपको मेथड पता है पर अगर नाम पता नहीं है तो आप कैसे बता पाओगे, राइट? मुझे सॉल्व तो पूरा करना नहीं है। तो प्लीज जो 5 मेथड मैंने बताई थी, ये वाली 5 के नाम याद रखना, क्योंकि
कोई भी इक्वेशन देके आपको पूछ सकते हैं कि ये वाला इक्वेशन कौन सी मेथड एप्लीकेबल है, तो उस टाइम पे आपको ये वाला याद होना चाहिए कि इनमें से कौन सी मेथड वहां पे फर्स्ट ऑर्डर फर्स्ट डिग्री इक्वेशन आया, फर्स्ट ऑर्डर और फर्स्ट डिग्री वाला डिफरेंशियल इक्वेशन है, मतलब उसमें इसके सॉल्यूशन के लिए ये वाली 5 में से भी ही एनी वन मेथड इज एप्लीकेबल देयर, राइट। ओके, तो अगर कोई बोलता है कि वेरिएबल सेपरेबल यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं, तो आपको इजी ही है, तो ऐसा पूछ सकते हैं कि दोनों वेरिएबल सेपरेट करके लिख के दे दो, एक ही स्टेप का तो काम है, तो आपको ये दोनों वेरिएबल सेपरेट करके लिख के देना पड़ेगा, गॉट इट। और या तो फिर ऐसा इक्वेशन डायरेक्ट किसी ने सॉल्व किया हुआ है, तो दूसरे बच्चे को पूछ सकते हैं कि इसका इंटीग्रेशन करके दो, तो आपको ये इंटीग्रेशन करना पड़ेगा, गॉट इट एवरीवन। तो इस तरह से फर्स्ट ऑर्डर फर्स्ट डिग्री में आपको अलग अलग तरह से ऑनलाइन वाइवा में क्वेश्चंस आ सकते हैं, गॉट इट। किसी को कोई डाउट है ये वाले क्वेश्चन में? Okay, so students, we'll move for next and last question of today's session. That is, please everyone ready with pen and paper. I'm going to ask randomly to any one of you. See, my question is why 1 plus x square whole raised to 1/2 dy plus x under root of 1 plus y square dx equal to 0. What will be the first step student? मुझे सिर्फ पहला स्टेप बताओ, ये क्वेश्चन है, मैं उसके सॉल्यूशन में फर्स्ट स्टेप क्या रहेगा मेरा? एनीवन? Yes, many students have given answer in the chat box and yes, you all are right that हमें ये जो सेकेंड dx वाली टर्म है उसको उठा के राइट हैंड साइड पे लिखना है। y 1 plus x square whole raised to 1/2 dy, यहाँ पे हो जाएगा माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 1 plus y square dx इक्वल टू हाफ, राइट। जो यहाँ x रहेगा सो माइनस x और दिस वन। अब जैसे मैंने बोला था dy के साथ ओनली फंक्शन ऑफ y, तो यहाँ हो जाएगा y अपॉन अंडर रूट 1 plus y square, राइट, और यहाँ इंटू dy, और यहाँ माइनस x, और ये जो है ना वो नीचे जाएगा, मतलब 1 plus x square रेस्ट टू 1/2 इंटू dx। अब यहाँ पे सिर्फ स्टाइल अलग है, बट दिस इज स्क्वायर रूट, तो भी वो भी रेस्ट टू 1/2 ही हुआ, या फिर ये 1/2 को स्क्वायर रूट के फॉर्म में लिखो, राइट। dy के साथ फंक्शन ऑफ y, dx के साथ फंक्शन ऑफ x, दोनों सेपरेट हो गए स्टूडेंट्स। जैसे ही दोनों वेरिएबल सेपरेट होते हैं, व्हाट टू डू? इंटीग्रेटिंग बोथ साइड, दोनों साइड पे मुझे इंटीग्रेशन लेना है। यस, यू ऑल राइट, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड। अब इसका इंटीग्रेशन क्या होगा? ऐसे टाइम कम है, हमारा लेक्चर कंप्लीट होने को है, दैट्स व्हाई आई एम राइटिंग हियर डायरेक्टली 1/2 इंटीग्रेशन। यहाँ पे ये स्क्वायर रूट ऑफ 1 plus y square मैं उसको न्यूमरेटर में लिखूं, दैट इज रेज टू माइनस 1/2, राइट। यहाँ 2 से डिवाइड किया मैंने तो 2 मल्टीप्लाई कर दूंगी, समझ में आया ना? सेम वे ऑन द राइट हैंड साइड स्टूडेंट्स, इफ आई डिवाइड बाय 2 and this is 1 plus x square raised to minus 1/2 into 2x into dx, राइट। अब इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा, ये देखो दिस इज अवर फंक्शन ऑफ x, मतलब वॉट एवर फंक्शन ऑफ y। मैं फॉर्मूला ही यहाँ पे लिख देती हूँ, इंटीग्रेशन ऑफ फंक्शन ऑफ x रेज टू n, और बाजू में उसका डेरिवेटिव है, देन आंसर इज व्हाट? f of x whole raised to n plus 1 अपॉन n plus 1, राइट स्टूडेंट्स। तो यहाँ पे वो फॉर्मूला अप्लाई करो, तो यहाँ पे 1 plus y square is there, so 1 plus y square
होल रेस्ट टू n प्लस वन, तो हमारा n क्या है -1/2 प्लस वन, सो प्लस 1/2 इज देयर, होल डिवाइड बाय व्हाट, होल डिवाइड बाय 1/2, और आगे जो 1/2 था तो ये 1/2 और ये 1/2 वो दोनों कैंसिल हो जाएंगे। सेम वे ऑन द राइट हैंड साइड -1/2, यहाँ पे 1 प्लस एक्स स्क्वायर होल रेस्ट टू 1/2 और अपॉन 1/2, ये दोनों कैंसिल होंगे, प्लस सी इज देयर। गॉट इट एवरीवन? Okay, so this is the variable separable method. If you have any doubt, you may raise your hand. Otherwise, you may leave today's session. If you have any doubts, you may ask. Okay, thank you.